Hello aspirants, welcome to today's discussion on census and delimitation means जनगणना और परिसीमन. The government is set to conduct the much delayed census next year. Here's everything you need to know about census and its link with delimitations. जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए या राष्ट्र के विकास से संबंधित सरकार जो योजनाएं बनाती हैं, नीतियां बनाती हैं, जिन मदों के लिए एग्जीक्यूट करती हैं, इन सभी के लिए सरकार को देश का एक डेटा की जरूरत होती है. इसीलिए जनगणना कराई जाती है ताकि पता चल सके कि किस टाइप के, किस तरह के लोग हैं, जिनकी क्या क्या कैटेगरीज है, कितने जो है तो गरीबी की श्रेणी में हैं, वृद्ध हैं, असहाय हैं, बीमार पीड़ित हैं, या तरह तरह की इसकी अलग अलग कैटेगराइज होती हैं. तो इसके लिए जनसंख्या का होना आवश्यक होता है और इसीलिए जो है जनसंख्या लगभग हर 10 वर्ष के अंतराल में कराई जाती है. लेकिन अभी कुछ सालों में इसमें कुछ आया है जो अभी अगला 2025 में फिर से जनगणना स्टार्ट होनी है. तो इसीलिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड. व्हाट इज द इश्यू? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू कंडक्ट द लॉन्ग डिलेड census next year with the aim of completing the process by 2026. This census is connected to two significant outcomes: the delimitation of parliamentary constituencies, which has been on hold for the last 50 years, and the implementation of women's reservation in parliament. In this context, it is crucial to know about the census and delimitation in India. भारत सरकार अगले साल लंबे समय से लंबित जनगणना कराने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य 2026 तक प्रक्रिया पूरी करना है. यह जनगणना दो महत्वपूर्ण परिणामों से जुड़ी है: संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, जो पिछले 50 वर्षों से रुका हुआ है, और संसद में महिला आरक्षण का कार्यान्वयन. इस संदर्भ में भारत में जनगणना और परिसीमन के बारे में जानना महत्वपूर्ण है. Why is this issue relevant? This topic of census and delimitation are relevant for the UPSC civil services exam as they pertain to governance, population, dynamics and electoral process. With India becoming the most populous country, this topic becomes essential for UPSC preparation. Moreover, UPSC has previously asked questions on these topics. Aspirants will also find it relevant for essays and in their current affairs and their personality test. These topics belong to Civil Services Preliminary Examination on Indian polity and governance, constitution, political system, panchayati raj, public policy, right issues, and also belongs main exams on GS paper 1, GS paper 2, population and associated issues, government policies and interventions, constitutions of India. What will you learn from this lecture? What is the census and its significance? How has the census evolved historically in India? How is the census conducted in India? How are census data and delimitation related? Now, one by one, I will explain. So let us start from first questions. Questions first. What is the census and its significance?
मीन्स जनगणना क्या है और इसका महत्व क्या है। ए सेंसस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड disseminating demographic, social and economic data about all individuals in the country at the specific time. There is a constitutional mandate to carry out a census in India. It is mentioned as item 69 on the union list of subjects, meaning only the one union government is empowered to undertake the exercise. It is also mandated with several references regarding the reorganization of constituencies for parliament and state assemblies. However, the constitution does not specify when the census should be conducted or how frequently it should take place. The Census of India Act of 1948, which establishes the legal framework for the census, also lacks details on its timing or periodicity. As a result, there is no constitutional or legal requirement for a census to be conducted every 10 years. मतलब कहने का यह हुआ कि जनगणना एक विशिष्ट समय पर देश के सभी व्यक्तियों के बारे में जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी, सामाजिक, सोशल एंड आर्थिक, इकोनॉमिक डेटा एकत्र करने, संकलन करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की प्रक्रिया है। भारत में जनगणना करने का संवैधानिक आदेश है। इसे संघ की विषयों की सूची में आइटम 69 के रूप में उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है कि केवल केंद्र सरकार को ही यह करने का अधिकार है। संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के संबंध में कई संदर्भों के साथ ये भी आदेशित है। हालांकि संविधान ये निर्दिष्ट नहीं करता है कि जनगणना कब की जानी चाहिए या इसे कितनी बार किया जाना चाहिए। भारत की जनगणना अधिनियम 1948 जो जनगणना के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है, में भी इसके समय के बारे में विवरण का अभाव है। नतीजतन हर 10 साल में जनगणना कराने की कोई संवैधानिक या कानूनी आवश्यकता नहीं है। Now, significance of census. The census may not be a legal requirement, but its utility has established it as a regular and essential exercise, as it provides a comprehensive overview of the country's demographic, economic, social and cultural profile. The significance of the census is provides primary and authentic data at the village and world levels for town that serve as the foundation for all statistical activities influencing the planning, administration and economic decision-making processes. Various national and international agencies, scholars and business professionals utilize this data to plan and formulate policies. The data provided by the census forms the basis for every social and economic indicator as relying on outdated data such as statistics data 15 years old, is unreliable in a constantly changing environment. This unreliability can disrupt various indicators regarding India and negatively impact of the effectiveness of all types of developmental initiatives. The census provides a foundation of conducting various surveys nationwide. It is essential for making informed decisions based on factual evidence. Democratic processes like the delimitation of electoral constituencies as well as affirmative action initiatives such as reservations also rely on data from the census. जनगणना भले ही कानूनी तौर पर अनिवार्य न हो, लेकिन इसकी उपयोगिता ने इसे एक नियमित और आवश्यक प्रक्रिया के रूप में स्थापित किया है, क्योंकि यह देश की डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल रूपरेखा का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। जनगणना का महत्व यह है कि यह गांवों और शहरों के वार्ड स्तर पर प्राइमरी एंड ऑथेंटिक डेटा प्रदान करता है।
जो सभी स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज के लिए बेस के रूप में काम करता है, जो प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रभावित करता है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, व्यावसायिक पेशेवर इस डेटा का उपयोग अपनी योजनाएं एवं नीति बनाने के लिए करते हैं। जनगणना द्वारा प्रदान किया गया डेटा हर सामाजिक और आर्थिक संकेतक का आधार बनता है, क्योंकि पुराने डेटा पर डिपेंडेंट रहना जैसा कि 15 साल पुराने आंकड़े लगातार बदलते परिवेश में अविश्वसनीय है। यह अविश्वसनीयता भारत के बारे में विभिन्न संकेतकों को बाधित कर सकती है और सभी प्रकार की विकासात्मक पहलों की प्रभावशीलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। जनगणना देश भर में विभिन्न सर्वेज करने के लिए एक बेस प्रदान करती है। फैक्चुअल एविडेंस के आधार पर इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए आवश्यक है। डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस जैसे कि चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का डिलिमिटेशन, साथ ही रिजर्वेशन जैसी सकारात्मक कार्रवाई की पहल भी जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ हैज द सेंसस इवॉल्व्ड हिस्टोरिकली इन इंडिया? मीन्स भारत में जनगणना का ऐतिहासिक रूप से किस प्रकार विकसित हुई। द इंडिया सेंसस हैज ए लॉन्ग एंड सिग्निफिकेंट हिस्ट्री. Let us understand history of census of India through the timeline of the major events. Firstly start census of 1872. In the year 1866 to 67, a census was conducted which is commonly referred to as the census of 1872. This census involved counting individuals across most parts of the country. However, it did not include all territories under British control. It was non-synchronous census. मतलब ईयर 1866-67 में एक जनगणना आयोजित की गई थी, जिसे आमतौर पर 1872 की जनगणना के रूप में जाना जाता है। इस जनगणना में देश के अधिकांश हिस्सों में व्यक्तियों की गिनती शामिल थी। हालांकि इसमें ब्रिटिश कंट्रोल वाले सभी क्षेत्र शामिल नहीं थे। यह गैर समकालिक जनगणना थी। नेक्स्ट, सेंसस ऑफ 1881. इट वाज कंडक्टेड ऑन February 17, 1881 by W.C. Plowden, the Census Commissioner of India. Census of 1881 marked a significant advancement towards a modern and synchronized census. This census emphasized not only complete coverage but also the classification of demographic, economic and social characteristics. The census of 1881 encompassed the entire continent of British India, excluding Kashmir, and excluded feudatory states that were politically connected to the government of India. However, it did not include French and Portuguese colonial possessions. मतलब ये 17 फरवरी 1881 को भारत के जनगणना आयुक्त W.C. प्लोडेन द्वारा आयोजित की गई थी। 1881 की जनगणना ने एक आधुनिक और समकालिक जनगणना की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित किया। इस जनगणना ने न केवल पूर्ण कवरेज पर जोर दिया, बल्कि जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं के वर्गीकरण पर भी जोर दिया। 1881 की जनगणना में ब्रिटिश पाल इंडिया के पूरे महाद्वीप कश्मीर को छोड़कर को शामिल किया गया था और इसमें सामंती राज्य शामिल थे जो पॉलिटिकल रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े थे। हालांकि इसमें फ्रांसीसी और पुर्तगाली औपनिवेशिक संपत्ति शामिल नहीं थी। नेक्स्ट, 1921 सेंसस. It covered the entire territory known as the Indian Empire, which included both the regions directly controlled by the government of India, commonly referred to as British India, and the Indian states, which comprised areas administered by Indian chief in political relation with the central government or various provincial governments. मतलब ये कहने का कि 1921 की जनगणना में भारतीय साम्राज्य के रूप में जाना जाने वाला संपूर्ण क्षेत्र शामिल था। इसमें भारत सरकार द्वारा सीधे नियंत्रित दोनों क्षेत्र शामिल थे, जिन्हें आमतौर पर ब्रिटिश इंडिया और भारतीय राज्यों के रूप में संदर्भित किया जाता था।
इसमें केंद्रीय सरकार या विभिन्न प्रांतीय सरकारों के साथ राजनीतिक संबंध में भारतीय प्रमुखों द्वारा प्रशासित क्षेत्र भी शामिल थे। नेक्स्ट इज सेंसस ऑफ 1951। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1951। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस, मार्किंग द 7th census in the country's ongoing series. Notably, the entire region of Jammu and Kashmir was excluded from this census, and its population was estimated using data from previous census figures. Means 1951 की जो जनगणना थी, ये स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी, जो देश की चल रही चेन यानी श्रृंखला की 7वीं जनगणना थी। विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के पूरे क्षेत्र को इस जनगणना से बाहर रखा गया था और इसकी जनसंख्या का अनुमान पिछली जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके लगाया गया था। नेक्स्ट इन 1971 सेंसस was the 11th census in a continuous series. This census was conducted at a different time compared to previous ones to avoid a clash with the mid-term parliamentary election. मतलब कहने का ये हुआ कि 1971 की जनगणना 11वीं जनगणना थी। यह जनगणना पिछली जनगणनाओं की तुलना में अलग समय पर की गई थी ताकि मध्यावधि संसदीय चुनावों से टकराव से बचा जा सके। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। नेक्स्ट इन 2011 सेंसस। द 2011 सेंसस वाज द 15th national census conducted by the Census Organization of India. It was carried out in 2 phases, house listing and population enumeration. मतलब कहने का ये कि 2011 की जनगणना भारत की जनगणना संगठन द्वारा आयोजित 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। इसे 2 चरणों में किया गया, हाउस लिस्टिंग और पॉपुलेशन इन्यूमरेशन मींस जनसंख्या गणना। नोटेबली द census 2021 16th census was postponed due to the outbreak of the COVID-19 pandemic, and it is expected that it will be conducted next year. जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जो 16वीं जनगणना 2021 में स्थगित कर दी गई थी और उम्मीद है कि ये अगले साल आयोजित की जाएगी। डू यू नो द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेंसस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन एन एडहॉक बेसिस फॉर ईच सेंसस अंटिल द 1951 सेंसस। द सेंसस एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1948 टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर conducting the population census, outlining the duties and responsibilities of census officers. In May 1949, the government of India decided to develop a systematic approach for collecting data on population size and growth. As a result, it set up an organization within the Ministry of Home Affairs under the Registrar General of India, who also serves as the ex officio census commissioner. मतलब यह हुआ कि जनगणना संगठन की स्थापना 1951 की जनगणना तक प्रत्येक जनगणना के लिए तदर्थ आधार पर की गई थी। जनगणना अधिकारियों के ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रेखांकित करते हुए जनसंख्या जनगणना के संचालन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए 1948 में जनगणना अधिनियम बनाया गया था। मई 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉपुलेशन के आकार और वृद्धि पर डेटा एकत्र करने के लिए एक व्यवस्थित अप्रोच विकसित करने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम RGI भी कहते हैं, के अधीन होम मिनिस्ट्री के भीतर एक संगठन की स्थापना की जो पदेन जनगणना आयुक्त मींस एक्स ऑफिशियो सेंसस कमिश्नर के रूप में भी कार्य करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन was how is the census conducted in the India?
तो देखिए यहां पर एक टर्म हमने यूज किया आरजीआई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि होम मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है। तो फर्स्टली यू नो आरजीआई। आरजीआई स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, who is the head of the office of the registrar general and census commissioner of India. The RGCCI is an official census organization that conducts and analyzes demographic surveys in India, including the census of India and the linguistic survey of India. As per the RGI, total number of districts in India has gone up from 640 to 736 in 2021. The RGCCI is part of the Ministry of Home Affairs, Government of India. मतलब आप ये समझे कि RGI का मतलब है भारत का महापंजीयक, जो भारत के महापंजीयक और जनगणना आयोग के कार्यालय का चीफ है। यह एक आधिकारिक जनगणना संगठन है जो भारत में जनसांख्यिकी सर्वेक्षणों का संचालन और विश्लेषण करता है, जिसमें भारत की जनगणना और भारतीय भाषाई सर्वेक्षण शामिल है। आरजीआई के अनुसार भारत में जिलों की कुल संख्या, जो कि 2011 तक 640 थी, से बढ़कर वर्ष 2021 तक 736 हो गई है। आरजीसीसीआई भारत सरकार के गृह मंत्रालय का हिस्सा है। ये जो पैराग्राफ है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। एंड नेक्स्ट, द आरजीसीसीआई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड, आपको यह पता होना चाहिए कि इनकी जिम्मेदारियों में क्या क्या चीजें शामिल हैं। कंडक्टिंग द डिसेनियल सेंसस ऑफ इंडिया, मीन भारत की 10वीं जनगणना का संचालन करना। मेंटेनिंग द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली को बनाए रखना। एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स रिलेटेड टू बर्थ डेट एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन, मीन्स जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। द आरजीसीसीआई वाज फाउंडेड इन 1961, इंपॉर्टेंट लाइन, द करेंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इज मृत्युंजय कुमार नारायण, जो कि सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो ये भी लाइन आपको जानना जरूरी है कि आरजीसीसीआई कब स्थापित हुआ, 1961 में, और करेंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन है इस समय, उनका नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमारा था हाउ इज द सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया, मतलब यह था भारत में जनगणना कैसे की जाती है। द इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। The responsibility for conducting the decadal census lies with the Office of the Registrar General and Census Commissioner of India, which is a part of Ministry of Home Affairs, Government of India. The central government, in collaboration with the state and union territory governments, conducts this extensive administrative activity across the country. The administration of each state and union territory is responsible for ensuring the smooth execution of the census, maintaining high quality data and ensuring complete coverage of their respective areas. The census consists of two main steps: a house listing and numbering exercise, followed by the actual population enumeration. A house listing and numbering occurs in the middle of the year before the census year. The population enumeration takes place over a span of 2 or 3 weeks in a February. The census numbers reflect India's population on March 1st of the census year. कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय जनगणना दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकी प्रक्रिया है। 10वीं जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के कार्यालय पर है, जो भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री का एक पार्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज के सहयोग से पूरे देश में इस व्यापक प्रशासनिक गतिविधि को संचालन करती है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन जनगणना के सुचारू निष्पादन को सुनिश्चित करने, उच्च गुणवत्ता वाले डेटा को बनाए रखने, अपने अपने क्षेत्रों की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जनगणना में 2 मुख्य चरण होते हैं: घरों की सूची बनाना, नंबरिंग करना, उसके बाद वास्तविक जनसंख्या गणना। घरों की सूची बनाना और नंबरिंग जनगणना वर्ष से पहले वर्ष के बीच में होती है।
जनसंख्या गणना फरवरी में 2 से 3 सप्ताह की अवधि में होती है। जनगणना के आंकड़े जनगणना वर्ष के 1 मार्च को भारत की जनसंख्या को दर्शाते हैं। सोशियो इकोनॉमिक एंड कॉस्ट सेंसस, ये भी शब्द आपने काफी सुना होगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सामाजिक, आर्थिक एवं जाति गणना। जाति आज इस समय वर्तमान में देखा जाए तो कई पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े राजनेताओं द्वारा इस शब्द की बात में हर भाषणों में जिक्र किया जाता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होना चाहिए। मीन्स सोशियो इकोनॉमिक एंड कॉस्ट सेंसस इज ए स्टडी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ रूरल एंड अर्बन हाउसहोल्ड्स एंड अलाउज रैंकिंग ऑफ हाउसहोल्ड्स बेस्ड ऑन द predefined parameters to address any births and dates that may have occurred during the enumeration period in February. Enumerers revisit households in the first week of March to make necessary revisions. Preparation for the census typically begins 3 to 4 years prior, involving several intermediate steps. The completion and publication of complete data can take several months to a few years. Means सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना ग्रामीण और शहरी परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन है और पूर्व निर्धारित मापदंडों के आधार पर परिवारों की रैंकिंग की अनुमति देता है। फरवरी में गणना अवधि के दौरान होने वाले किसी भी जन्म मृत्यु को संबोधित करने के लिए आवश्यक संशोधन करने के लिए गणनाकर्ता मार्च के पहले सप्ताह में घरों का फिर से दौरा करते हैं। जनगणना की तैयारी आमतौर पर 3 से 4 साल पहले शुरू होती है, जिसमें कई मध्यवर्ती चरण शामिल होते हैं और संपूर्ण डेटा के संकलन और प्रकाशन में कई महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक का समय लग सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर सेंसस डेटा एंड डेलिमिटेशन रिलेटेड। मीन्स जनगणना के आंकड़े और परिसीमन किस प्रकार संबंधित है। डेलिमिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग और redrawing the boundaries of territorial constituencies of elected body based on the population as determined by the most recent census. The main objective of delimitation is to provide equal representation to equal segments of a population. There is a clear link between delimitation and census, as the Article 82 of the Constitution of India calls for readjustment of boundaries after each census. Upon the completion of each census, the allocation of seats in House of the People to the states and the division of each state into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as a parliament may by law determine the provision states. The 42nd Constitution Amendment brought in 1976 amended Article 170 and froze the delimitation exercise until the results of the census after 2000 were published. In 2001, this was further extended for 25 years as the 84th Constitutional Amendment of 2001 said that the next delimitation can be held only based on the census conducted after 2026. Article 170 deals with the composition of legislative assemblies and contains an explanation to the provisions defining the world population, which is the basis for dividing territorial constituencies. मतलब यह हुआ कि परिसीमन हाल ही में हुई जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित निकायों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करने या फिर से बनाने की प्रक्रिया है। परिसीमन का मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या के समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना। परिसीमन और जनगणना के बीच एक स्पष्ट संबंध है, जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद सीमाओं के पुनः समायोजन का आह्वान किया गया है। इसके प्रावधान में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का काम ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे तरीके से पुनः समायोजित किया जाएगा जैसा कि पार्लियामेंट कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है। 1976 में लाए गए 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 170 में अमेंडमेंट किया और 2000 के बाद की जनगणना के परिणाम प्रकाशित होने तक
परिसीमन अभ्यास को रोक दिया। 2001 में इसे 25 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, क्योंकि 2001 के 84th अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया कि अगला परिसीमन केवल 2026 के बाद आयोजित जनगणना के आधार पर ही किया जा सकता है। आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है और इसमें जनसंख्या शब्द को परिभाषित करने वाला प्रावधान की व्याख्या भी शामिल है, जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित करने का बेस है। अब हम बात करेंगे हु कैरीज आउट डिलिमिटेशन, परिसीमन कौन करता है। Delimitation is carried out by an independent delimitation commission appointed by the Government of India under provisions of Delimitation Commission Act. The Delimitation Commission is appointed by a President of India and works in collaboration with the Election Commission of India. It is composed of the following, means a retired Supreme Court judge, the Chief Election Commissioner of India and respective state election commissioners. The Constitution mandates that the Commission's orders are final and cannot be questioned before any court, and it would hold up an election indefinitely. Means परिसीमन एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, जिसे परिसीमन आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है। इसमें एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट का जज, भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और संबंधित राज्य के इलेक्शन कमिश्नर्स। संविधान में कहा गया है कि आयोग के आदेश अंतिम हैं और किसी भी अदालत के समक्ष उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि इससे चुनाव अनिश्चित काल के लिए रुक जाएगा। अब यहां पर देखिए, हम थोड़ा डेलिमिटेशन के इतिहास पर नजर डालेंगे कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ डेलिमिटेशन। दो the decadal census has been conducted 7 times since independence 1951 to 2011. The delimitation exercise has been carried out only 4 times in 1952, 1953, 1973 and 2002. The last delimitation, however, only readjusted the boundaries of constituencies based on the population and did not lead to an increase in the number of seats, which have remained constant since 1976. मतलब स्वतंत्रता के बाद से अब तक मीन्स 1951 से लेकर 2011 तक 10 की जनगणना 7 बार की जा चुकी है, लेकिन परिसीमन का काम सिर्फ 4 बार मतलब 1952, 1953, 1973 और 2002 में किया गया। हालांकि पिछले परिसीमन में सिर्फ जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से समायोजित किया गया था और सीटों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, जो 1976 से स्थिर बनी हुई है। अब यहां पर देखिए सेंसस प्रोसेस क्या है, इसको आप समझिए। और यहां पर एक वर्ड हमने यूज किया था, डिकेडल सेंसस प्रोसेस, यानी दशकीय जनगणना प्रक्रिया क्या है। तो आप यहां पर देखें कि इस जनगणना का प्रोसेस क्या है। फर्स्टली प्रिपरेटरी वर्क स्टेट्स प्रोवाइड information on changes in the number of administrative units like town, district, etc. to RGI। कैसे प्रिपरेटरी वर्क करता है, क्या होता है। नेक्स्ट सेकेंड, यदि आप स्टेज में आए, इन्यूमरेशन। तो इन्यूमरेशन देखिए 2 फेसेस में होता फेस 1 एंड फेस 2। फेस 1 हाउस लिस्टिंग द हाउसिंग सेंसस, मतलब फेस 1 में हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस। दिस फेस विल आल्सो इंक्लूड इन्यूमरेशन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे हम शॉर्ट में एनपीआर कहते हैं। नेक्स्ट फेस में क्या होता है, ईच पर्सन इज इन्यूमरेटेड एंड हिज इंडिविजुअल्स पर्टिकुलर्स मींस एज, रिलीजन आर नोटेड। तो देखिए स्टेप बाय इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया।
नेक्स्ट स्टेज इज डेटा प्रोसेसिंग एंड नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स, कि मतलब जो रिजल्ट्स है उसका मूल्यांकन, एंड नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स, जो परिणाम आते हैं उनका विश्लेषण, एंड नेक्स्ट इज डिसेमिनेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो आप ये देखिए जो हमारा डिकेडल सेंसस प्रोसेस है जनगणना का, ये कैसे एक प्रोसेस के तहत कार्य करता है ये आपके सामने है, इसे आप बोर्ड में भी देख सकते हैं। अब देखें कि यहां पर देखिए दो वर्ड्स हमेशा सुनने को मिलते हैं, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और सेंसस। तो यहां आपको यह जानना जरूरी है कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों की क्या भूमिका है। तो मेन ये समझिए कि सेंसस एंड एनपीआर इन दोनों का लीगल ओरिजिन सेंसस एक्ट 1948 में, बट एनपीआर सिटीजनशिप रूल्स 2003 जो ये दोनों में है। दोनों का पर्पज क्या है? सेंसस असेसमेंट पॉलिसी एंड प्लानिंग, बट एनपीआर क्रिएटिंग एनआरआईसी। सेंसस क्या इंफॉर्मेशन देता है? नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन, लिटरेसी, माइग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम। मतलब जनगणना यह बताता है कि साक्षरता दर में क्या वृद्धि हुई, कितना होगा, माइग्रेट कितने लोग हुए, एम्प्लॉयमेंट क्या है, आय क्या है, इनकम। एनपीआर में क्या है? एनपीआर में इंफॉर्मेशन देता है बर्थ डिटेल्स, पेरेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, मतलब जन्म दर के बारे में डिटेल में जानकारी देता है, पेरेंट्स उनसे संबंधित पूरी डिटेल, डॉक्यूमेंट्स। डेटा प्राइवेसी में देखिए सेंसस क्या करता है? एनोनिमस एंड कॉन्फिडेंशियल, बट एनपीआर नॉट कॉन्फिडेंशियल। सेंसस में क्या कि पनिशमेंट के लिए क्या प्रावधान है? नो पनिशमेंट फॉर नॉन डिस्क्लोजर, बट एनपीआर पनिशमेंट फॉर नॉन डिस्क्लोजर्स। तो देखिए ये वर्ड हमेशा आप सुनने को मिलता है, आपको पता होना चाहिए, सेंसस वर्सेस एनपीआर। अब यहां पर यह ध्यान है कि इस लेक्चर में मेल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे जनरेट होते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। Why the census is crucial for delimitation, especially in the context of women's reservation in parliament? मीन्स जनगणना परिसीमन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, विशेष रूप से संसद में महिला आरक्षण के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द डिलेड सेंसस ए मैटर ऑफ कंसर्न? जनगणना में देरी चिंता का विषय क्यों है? तो देखिए मेंस में इस लेक्चर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इनके आंसर आपके लेक्चर में ही शामिल है, आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। देन आपको जरूरी है कि ये टॉपिक प्रिलिमिनरी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे जनरेट होते हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पर जैसे देखिए बोर्ड में आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी डेलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 में पूछा जा चुका है, जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे लेक्चर में इसका आंसर है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द डेलिमिटेशन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन में देखिए दो दिए हुए हैं, द ऑर्डर्स ऑफ डेलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड in a court of law, and next is when the orders of the delimitation commission are laid before the Lok Sabha or the state legislative assembly, they cannot effect any modification in the orders. Which of the statements given above
इज आर करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर 14% आपको देख के समझना है, और ये क्वेश्चन 2012 में सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको ये देखिए इस लेक्चर्स का कितना महत्वपूर्ण रोल है आपके एग्जाम्स की दृष्टि से, कि प्रिलिमिनरी में भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेन एग्जाम में भी कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए कुछ क्वेश्चन और भी हैं, जैसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यह सवाल जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम 2009 में पूछा जा चुका है। जैसे इसमें दिया है, फर्स्ट इज बिटवीन सेंसस 1951 एंड सेंसस 2001 द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है इंक्रीज्ड मोर देन 3 टाइम्स। सेकंड इज बिटवीन सेंसस 1951 एंड सेंसस 2001 द annual growth rate of the population of India has doubled. Which of the statement given above is correct? तो देखिए ये भी हमारे लेक्चर में मेंशन है, जो मैं लेक्चर दिया हूं उसका आंसर ऑलरेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रिफरेंस टू द डेलिमिटेशन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, डेलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द ऑर्डर्स ऑफ द कमीशन कैन बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट, the commission determines the number of seats and describes the boundaries of constituencies. How many of the statements given above are correct? तो देखिए ये भी हमारे लेक्चर्स में इसका आंसर है। नेक्स्ट इज द डेलिमिटेशन कमीशन हैज बीन सेट अप इन, ये ऑप्शन में दिए हुए हैं, और आपको इस तरह से देखिए दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन बोथ फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स एंड स्टेट पीसीसी एग्जाम बोथ। तो ये लेक्चर को मैं मानता हूं कि आप गंभीरता से सुने होंगे और आंसर लिख करके आप वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो आज ही इतना, धन्यवाद।